Hello dear students, welcome back to my channel Ducklinks. As you know, most of the videos on my channel are education related videos, and this video is made on a special request which I have got from some of the parents and my friends, where they are concerned about the IMO preparation for their children. Generally, schools do provide this preparation, but that is done at the 11th hours, that is just before the examinations, and at that time the children are not able to cope up with the speed and the timelines of the school. Also, it is necessary that these preparations are done on a regular basis so that you get a practice of these questions, because IMO level questions needs a proper understanding and the tricks which you need to understand to solve these questions quickly, because speed is the key to winning the IMO exam. So let's start with first video. This video is for IMO questions, class 4 and 5 level questions I have picked. So you can definitely look at them, and as we will move forward with my further videos, we will see that the level of classes will also increase. So this video in particular is meant for class 4 and 5 IMO level questions. So this is the first question, in which you have to count the number of cubes which are given in this figure. Now if you see the figure properly, then there is a base. So if I show you, this is the base of the figure, right? And in the base, if you see, you can clearly see that there are 1, 2, 3 and 4. There are 4 cubes. And behind these 4 cubes, this is the fourth cube, right? This is the fourth cube, and then there is one more cube behind this cube. And obviously there will be one cube behind this, there will be one cube behind this, and there will be one cube behind this. So that means there are double the cubes at the base level. So what we see here into 2 will be my base. Then what will we see here into 2 will be the second level, and the top level is this into 2. So that's why the quickest way to solve this is 2, the 2 cubes which we say here, 2 cubes plus 3 plus 4. 2 क्यूब्स मेरी यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं और 4 यहाँ हैं. इनका मैंने टोटल किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके पीछे का पूरी लाइन लेने के लिए. तो मेरा आंसर आ गया 9 इंटू 2 18 क्यूब्स. तो इसका करेक्ट आंसर है 18. देयर आर 18 क्यूब्स इन दिस गिवन फिगर. आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं करती हूँ 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, दैट मीन्स मैं पहले एक्चुअली में इट इज़ बिकॉज यू नो दैट जो आपका 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू प्लस 4 इंटू 2. आई एम होपिंग कि आपने अपने क्लास 4 में जो आपने मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के प्रॉपर्टीज़ या रूल्स पढ़े हैं, उसमें आपने ये पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ प्लस 3 इंटू 2 करूँ प्लस 4 इंटू 2 करूँ, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 में पहले कर लूँ और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो ये आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उनका एप्लीकेशन अभी आपको समझ में आया कहाँ होता है इन प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन. जो हम कहते हैं ना, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी क्यों ज़रूरी हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं. तो आप, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना, बच्चे नहीं समझ पाते, वो पहले 2 इंटू 2 करते हैं, फिर 3 इंटू 2 करते हैं, फिर 4 इंटू 2 करते हैं, फिर उसको प्लस करते हैं. तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ आपको काम आती हैं जहाँ पे आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो वहाँ ये आपको प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है. तो हेयर 18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. In a certain code, red is called blue, blue is called green, green is called yellow and yellow is called black. Then what is the color of the grass? अब इस क्वेश्चन में इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. जो ग्रास है वो ग्रीन होती है और ग्रीन को हम येलो बोलते हैं, तो इसका आंसर येलो है. अब बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि अच्छा तो इसका आंसर येलो है तो फिर येलो को भी तो ब्लैक बोल रहे हैं, तो इसका आंसर ब्लैक होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है. वो ये बोल रहा है कि येलो को मैं ब्लैक बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे येलो दिख रही है उसको मैं ब्लैक बोल देता हूँ.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि भाई ग्रीन होती है ग्रास, पर ग्रीन को येलो बोलते हैं, पर येलो को तो ब्लैक बोलते हैं, तो आंसर ब्लैक है, तो फिर तो मेरा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, चाहे कोई रेड कलर की चीज़ है, चाहे कोई ब्लू कलर की चीज़ है, चाहे कोई येलो कलर की चीज़ है, और चाहे कोई ग्रीन कलर, सब कुछ सबके आंसर ब्लैक ही होंगे, क्योंकि फाइनली आप पूरी ड्रिल डाउन होकर ब्लैक पे ही आ रहे हो आप लास्ट में। रेड को ब्लू, ब्लू को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लैक। तो इसका मतलब आपको इन चारों कलर में से किसी भी कलर की चीज़ दिखे, आंसर ब्लैक ही है। नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोड लैंग्वेज ये कहती है कि जो चीज़ रेड दिख रही है उसको ब्लू बोलो, जो चीज़ ब्लू दिख रही है उसको ग्रीन बोलो, जो चीज़ ग्रीन दिख रही है उसको येलो बोलो, और जो चीज़ येलो दिख रही है उसको ब्लैक बोलो। तो मुझे ग्रास ग्रीन दिख रही है, इसलिए मैं उसको येलो ही बोलूंगी। उसने बोला जो चीज़ येलो दिख रही है उसको ब्लैक बोलो, मुझे ये ग्रास येलो तो नहीं दिख रही है, मुझे तो ग्रास ग्रीन दिख रही है, तो इसलिए मैं उसको येलो ही बोलूंगी। इसका आंसर येलो ही है। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ आई गो 7 steps towards east, then turn left and go 4 steps, then turn right and go 3 steps, in which direction am I facing now? इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, जो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में 7, 4 और 3 का कोई भी रेफरेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स का कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे डायरेक्शन बतानी है। तो पहले मैं टुवर्ड्स ईस्ट चली, तो राइट डायरेक्शन में चली, जहाँ मेरा एरो है, यानी मैं वहाँ फेसिंग कर रही हूँ। यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ गई, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड आप कीजिए, अगर आपका फेस इस तरफ है तो आप ऊपर की तरफ जाओगे लेफ्ट हैंड करने से, तो मेरा मुंह अब इधर हो गया, मेरा फेस अपवर्ड फेसिंग हो गया। यहाँ से मैंने अब राइट में टर्न किया, तो मेरा फेस जो है वो ईस्ट फेसिंग हो गया। तो मैं किस फेस पे, मेरा किस साइड मेरी फेसिंग है, तो आपकी फेसिंग वापस से ईस्ट साइड ही हो गई। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। आपका फेस, पहले आपने ईस्ट में चले तो आपका फेस ईस्ट में हो गया, वहां से आपने लेफ्ट लिया तो फेस अप हो गया, फिर आपने दोबारा से राइट लिया तो आप वापस से ईस्ट डायरेक्शन में ही आ गए हैं। तो आपका फेस फाइनली वापस से ईस्ट डायरेक्शन में आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न दिखाया है जो कि प्रॉपरली कंप्लीटेड नहीं है, और आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आप एक चीज को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। इस पैटर्न को अगर बहुत ध्यान से आपको करना क्या है, बेसिकली पैटर्न के अंदर पैटर्न को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकेंड और ये थर्ड। तो इनमें आप लिंक समझने की कोशिश कीजिए। अभी मेरा फर्स्ट ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है, इसमें नीचे वाला कॉर्नर जो है वो शेडेड है। अब इससे आप फर्स्ट से सेकंड वाली पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं, यानी अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं इस वाले ट्राइंगल को, तो मेरा ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देती हूँ तो मेरा ये ट्राइंगल बनेगा। क्या यही रिलेशन 2 और 3 में है? तो मैं इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो मेरा ये ट्राइंगल बनेगा, राइट? क्योंकि मेरे बीच का तो ऐसे ही बनता जा रहा है। आप देखिए, आप ये भी ध्यान कीजिएगा कि ये बीच में से भी है, ये यहाँ पे एक लाइन है। ऐसे मान लीजिए, इस ट्राइंगल को ऐसे कर लीजिए, इस फिगर को आप, तो आपकी फिगर ऐसे है, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये चीज़ मेरे नीचे आ गई, तो ये मेरा आधा सर्कल बन गया। फिर जब मैंने इसको दोबारा एक बार 2 से 3 पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो मेरा ये शेडेड पोर्शन यहाँ पे आ गया और ये मेरा सेंटर में आ गया। तो एक बार इसको दोबारा घुमाएं, देखिए इसको दोबारा घुमा के क्या होगा। तो अगर मैं इसको दोबारा घुमाऊंगी तो ये मेरा कहाँ आ जाएगा, जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगी तो सोचो आप, एक ही बार घुमाना है मुझे, यानी मुझे सिर्फ इसको 90 डिग्री टर्न करना है। तो जब मैंने इसको दोबारा 90 डिग्री टर्न किया तो मेरा ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे, और ये वाला जो है ये मेरा यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे। यानी आप फिगर सी पे पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आपका ये यहाँ आएगा तो ये आपका ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका शरीर हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपकी लाइन आ जाएगी। तो आपका ये वाला फिगर जो है वो पूरा बन जाएगा। तो ये आपका सी जो है इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया है। एक बार दोबारा मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स आपको, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं ये चीज़ दोबारा समझाती हूँ आपको, एक बार दोबारा समझेंगे। ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है, थर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। मुझे इसको एक बार मुझे रिलेशन देखना है तीनों में क्या है क्या, कि मैं वही रिलेशन आगे कंटिन्यू करके फोर्थ पैटर्न फाइंड आउट कर पाऊँ।
तो अगर आप इस ट्राइंगल को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका ट्राइंगल 2 बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसको घुमाओगे तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी जैसे इसमें है, और ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ घूम के आ जाएगी। फिर घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं दोबारा घुमाती हूँ एक बार, तो मेरा ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन शेयर हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन शेयर हो जाएगा, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। इसको करने का एक और इजी ट्रिक बताती हूँ। हमेशा जो पिक्चर बनेगी वो सिमेट्री में बनेगी। तो आपको एक ऐसी पिक्चर ढूंढनी है इन चारों ऑप्शंस में जिसके सेंटर में ये सर्कल हो, तभी तो ये सर्कल पूरा होगा। तो यानी कि ये दो ऑप्शंस तो पहले ही कैंसिल हो गए, इनमें तो है ही नहीं, तो यानी बचा ए और सी ऑप्शन। अब ए और सी ऑप्शन में से आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में 2 जगह शेडेड है, जबकि मेरे किसी भी ट्राइंगल में इसमें टोटल 3 जगह शेडेड है, 1 2 3, जबकि मेरे सारे ही ट्राइंगल्स में सिर्फ 2 जगह शेडेड है। तो ये ऑप्शन भी कट आउट हो गया, तो आंसर सी है। ये इसको करने का इजीएस्ट वे आउट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 18 गर्ल्स इन अ रो। कोमल इज द 5th फ्रॉम द राइट हैंड एंड दिव्या इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर कोमल और दिव्या अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेती हैं तो कोमल राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पे है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, ऐसे पहले एक लाइन बनाते हैं, फिर उसमें 18 लाइनें बनाते हैं कोमल और उसकी पोजीशन, फिर बोलते हैं कि अच्छा 5th पोजीशन पे कोमल है, 7th पोजीशन पे पीछे से राइट लेफ्ट हैंड से ये कोमल जो है 5th है फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा यहाँ पे है कोमल, यहाँ पे 5th पोजीशन है राइट हैंड से, यानी यहाँ कोमल है और यहाँ पे दिव्या है, और फिर उसके बाद उसको इंटरचेंज करते हैं। मुझे सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ये एक इसको करने का एक बेटर ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आइए अब आप समझिए। टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 18 है। कोमल राइट हैंड से 5th पे है और दिव्या 7th पे है। अब वो कह रहे हैं पोजीशंस चेंज कर ली, तो अब यानी आप ऐसा मान लो कि जो कोमल है वो 7th पे है लेफ्ट हैंड से। मुझे कोमल की पोजीशन बतानी है ना, मुझे पोजीशन किसकी बतानी है? कोमल की। तो कोमल लेफ्ट हैंड से, यानी दिव्या की जगह कोमल है, तो यानी आप इसको कैसे पढ़ो कि कोमल लेफ्ट से इस साइड से 7th पोजीशन पे है। टोटल कितनी पोजीशंस है? 18। तो अगर 18 में से वो 7th पोजीशन पे है तो वो राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन पे हो गई? 18 माइनस 7 11, 11 नंबर्स इन बिटवीन है, 7th पोजीशन पे वो है, तो मैं इसमें 1 ऐड करूंगी +1, यानी कि 12th पोजीशन पे है वो राइट से। आपको समझाती हूँ। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए नंबर लाइन पे समझा देती हूँ। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, करने के लिए ट्रिक समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको इसे समझाऊंगी अब एक नंबर लाइन पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करी जो कि बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, और यहाँ मेरी है 7th पोजीशन। टोटल मुझे नहीं मतलब कोमल वो कहाँ थी 5th पोजीशन पर राइट पर, नहीं, मैं यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ के समझ गई कि मुझे तो सिर्फ कोमल और उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो यानी अब दिव्या की जगह 7th पोजीशन पे मेरी कोमल है, और टोटल मेरे पास यहाँ 18 बच्चे थे। ठीक है, तो 18 और 7 के बीच में कितने हैं? बीच में नंबर लाइन तो सबने पढ़ी है ना, 18 माइनस 7 11। तो ये पोजीशन कौन सी है? अगर मुझे इनमें से एक दोनों, अभी जब हम दो नंबरों को माइनस कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे भूल जाते हैं। जब मैं किन्हीं दो नंबरों को माइनस करती हूँ 18 माइनस 7 11, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने एक नंबर को तो लिया है, अगर मैं नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक को नहीं लिया है, मैं उनके बीच की बात कर रही हूं, इंक्लूडिंग वन ऑफ देम। तो मुझे तो ये वाली पोजीशन बतानी है, यानी मुझे इसे भी इंक्लूड करना है, तो मुझे इसमें +1 करना होगा, तो मेरा 12th पोजीशन हुई वो। अगर आपको उसको भी इंक्लूड करना है, दूसरे नंबर को भी, तो आपको +1 करना होता है। तो यानी इसका आंसर है ए, यानी कि 12th पोजीशन पे है वो। क्लियर है? 5 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में किए हैं, कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको, उनको करने की, जल्दी करने की ट्रिक समझाई है। अगली वीडियो में हम फिर से और 5 क्वेश्चंस करेंगे।
सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ को देख पाएँ और इनका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।